Hello, so welcome all of you once again. So now we are going to start our next topic of the Unit 10 haloalkanes and haloarenes. In our previous class, we already about method of preparation of haloalkanes and method of preparation of haloarenes. Now let's start our today's session with chemical reaction, means how many types of chemical reaction is performed by haloalkanes and haloarenes. Now, so the reactions of haloalkanes, first reaction is nucleophilic substitution reaction, second one is elimination reaction, and third one is reaction with metal. This is the three main types of reaction of haloalkanes: nucleophilic substitution, elimination, and reaction with metal. Okay, now let's discuss one by one the nucleophilic substitution reaction. This is the most important reaction which is performed by alkyl halides. Okay, which is performed by alkyl halides. So what happen in this reaction? In this type of a reaction, a nucleophile react with haloalkane. In this type of a reaction, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, रिएक्ट करता है विथ हेलोएल्केन, जिसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, विच इज़ हेलोएल्केन्स ऑल्सो कॉल्ड, मतलब जो भी रिएक्शन करता है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं. हैव ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. यू नो दैट इन हेलोएल्केन्स हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सी दिस इज हेलोएल्केन्स. हियर कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज and X is halogen has partial negative charge. So a partial positive charge on the carbon atom bonded to halogen, a substitution reaction takes place. यहाँ पर एक substitution होगा, means exchange of halogen with a nucleophile. Substitution means exchange of halogen with a nucleophile, है ना. A substitution reaction takes place and a halogen atom called leaving groups. See, this halogen atom is called leaving group, जो छोड़ के जाने वाला है, मतलब यहाँ से इसको रिमूव हो जाएगा. So a substitution reaction takes place and halogen atom called leaving group as halide ion. Since the substitution reaction is initiated by nucleophile, ये जो substitution हो रहा है it is initiated by nucleophile, इसकी शुरुआत न्यूक्लियोफाइल ने की. So it is called nucleophilic substitution reaction. Okay, so it is called nucleophilic substitution reaction. मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है जो हेलोजन आपको दिखाई दे रहा है. सी दिस न्यूक्लियोफाइल, दिस न्यूक्लियोफाइल इज एक्सचेंज विथ दिस हेलोजन. ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ से इस हेलोजन से एक्सचेंज हो जाएगा, मीन्स सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एंड आवर प्रोडक्ट बन जाएगा दिस आवर प्रोडक्ट. एंड ये यहाँ से ये जो लिविंग ग्रुप है, हेलोजन इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप, एज ए हेलाइड आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा. तो X इज इक्वल टू फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन. सो दिस इज द मेन रिएक्शन. न्यूक्लियोफाइल substitute with halogen, a product is formed and a halide ion live as a living groups. So now what is nucleophile? आपको पहले भी बता चुके हैं in your previous classes. You already know nucleophile in your previous classes. What is nucleophile? What is electron pair donor, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है. ओके, so nucleophile is a electron pair donor. Nucleophile is a electron pair donor. A reagent that bring an electron pair called nucleophile, जिसको कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल. ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर रखता हो. न्यूक्लियस सीकिंग, विच इज न्यूक्लियस सीकिंग मीन्स न्यूक्लियस की खोज करे. एंड रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक. सो when nucleophile start with a reaction, it is called nucleophilic reaction. So here is some of the example given: hydroxide ion, fluoride ion, water, ammonia, etc. These all are electrophile because all have electron pair, so they can donate their electron pair. So it is also called as nucleophile, electron pair donor. It is called nucleophile. Now let's
revise it some alkyl groups. You already know about R means alkyl group. So alkane यहाँ से CH4 मीथेन, मीथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा. So this is CH3. So CH3 से बनेगा मिथाइल ग्रुप. C2H5 यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये कहलाएगा इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल, डिकाइल, so many. So here are, see this abbreviation are used for some alkyl group. मीन्स मिथाइल को हम शॉर्टकट में MEB लिख सकते हैं, इथाइल को शॉर्टकट में E2 लिख सकते हैं, प्रोपाइल PR, ब्यूटाइल ब्यूट ब्यू. ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ लेट्स सो द एल्काइल ग्रुप कैन ब्रांच आल्सो. द एल्काइल ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो ब्रांच भी हो सकते हैं. सी हियर 1 2 एंड 3 कार्बन की चेन है. इसको हम आइसोप्रोपाइल इस तरह से होता है, एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं. सो इट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप. सेकेंडरी ब्यूटाइल, सी दिस मिथाइल ग्रुप, सी दिस कार्बन हियर, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप. आइसोब्यूटाइल 1 2 3 एंड 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पर इस कार्बन से देख सकते हैं आप कितने ग्रुप अटैच हैं. हियर इज CH2. ओके. सो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विथ 1 कार्बन एट द बिगिनिंग और एंड पोजिशन. इट इज नोन एज आइसोब्यूटाइल ग्रुप. सी हियर N प्रोपाइल मीन्स अ स्ट्रेट चेन. N प्रोपाइल मीन्स अ स्ट्रेट चेन. सी टर्ट ब्यूटाइल. सी दिस कार्बन, here this carbon have 3 degree. इस कार्बन की डिग्री क्या है? 3 है. 1 2 and 3 कार्बन अटैच्ड विद दिस कार्बन, सो इट इज टर्ट ब्यूटाइल मीन्स 3 डिग्री कार्बन एटम. नियोपेंटाइल, सी दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 4 more carbons, 1 2 3 and 4, so it is neopentyl. Okay, let's discuss some more examples. Suppose this is our R group, CH3 CH2. What is this? This is ethyl group, so it is alkyl halide. And OH minus hydroxide ion, this is our nucleophile. So this nucleophile OH minus is substituted with this chlorine, because here is positive, here is negative charge and here is this carbon is positive charge. तो ये यहाँ से सब्सटीट्यूट हो जाएगा क्लोरीन इस हाइड्रोक्साइल से और हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 OH, which is 1 degree alcohol, and chloride ion live as a living group. See this one more example. This is isopropyl group. See this carbon here, this carbon has 2 methyl group attached, so this is isopropyl bromide. So hydroxide ion here is positive charge and here bromide ion has negative charge. So this hydroxide group is easily replaced with this bromine ion and a substitution takes place. So यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा और इसकी जगह OH आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल सिंपली, एंड ब्रोमाइड आयन लीव यहाँ से बाहर निकल जाएगा. सी दिस वन मोर एग्जाम्पल. Okay, see this alkyl halide. This alkyl halide is 3 degree alkyl halide. 3 degree alkyl halide. Here this carbon is partial positive charge and this carbon is partial negative charge. So this chlorine is replaced with this hydroxide ion. This chlorine is replaced with this hydroxide ion and ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा. दिस इज अवर सी OH group, this is alcohol, so this is 3 degree alcohol. This is 3 degree alcohol. Okay, so we can use different types of nucleophile and different types of product we have obtained. Okay, मतलब अलग अलग यहाँ पे मैंने सभी में OH लिया है, यहाँ पर OH की जगह कुछ और भी हो सकता है. So how many types of nucleophiles, कितने तरह के न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस सम कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स एंड डिफरेंट प्रोडक्ट विच इज़ गिवन बाय द
न्यूक्लियोफाइल, कितने तरह के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. दिस इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, सी दिस. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन से कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, विथ सम कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स आर गिवन इन द टेबल. सी दिस, दिस इज अवर रिएजेंट. रिएजेंट मतलब ये रिएजेंट लोगे आप तो इससे ये वाला न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, ये वाला रिएजेंट लोगे तो इससे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, और सब्स्टिट्यूशन जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इस न्यूक्लियोफाइल से ये प्रोडक्ट बनेगा. ये रिएजेंट लेंगे, ये वाला न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, और इस न्यूक्लियोफाइल से ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा, और यहाँ पे इसका नाम लिखा है. सो सी दिस टेबल वन बाय वन केयरफुली. सपोज इफ यू टेक NaOH और KOH, देन इट गिव्स यू OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल, एंड यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होके क्या बनाएगा, ROH अल्कोहल. इफ यू टेक वाटर, देन न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो वाटर, एंड हियर प्रोडक्ट इज अवर ROH विच इज अल्कोहल. सी दिस NaOR एल्कोक्साइड आयन. सो यहाँ पर ये RO माइनस, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन. यहाँ से बनाएगा ईथर, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ROR, और R यहाँ पे ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, विच इज प्रीवियसली वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. से आवर प्रोडक्ट इज ईथर, ROR, इसको बोलते हैं ईथर. नेक्स्ट सोडियम आयोडाइड. हियर सोडियम आयोडाइड बनाएगा हमारा आयोडाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये यहाँ से बनाएगा RI, दिस इज एल्काइल आयोडाइड. सी दिस अमोनिया NH3, अमोनिया इज लोन पेयर, सो अमोनिया न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया से न्यूक्लियोफाइल अमोनिया ही होगा, और यहाँ से बनेगा RNH2. इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एमीन, बिकॉज हियर सी दिस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ में एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है या फिर एक कार्बन अटैच्ड है, सो इसलिए हमने इसको प्राइमरी एमीन बोला है. सी नेक्स्ट, प्राइमरी एमीन आप लोगे तो इससे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो प्राइमरी एमीन होगा, और प्राइमरी एमीन से जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके 2 डिग्री सेकेंडरी एमीन और 2 डिग्री एमीन. सी दिस 2 डिग्री एमीन, इफ यू टेक 2 डिग्री एमीन, then our nucleophile will be also 2 degree amine, and R dash. See this R and R dash means both R and R group may be different. Okay, so here 2 degree amine se 3 degree amines will be generated, tertiary amine, we also call this tertiary amine. Now next see this KCN जनरेटेड साइनाइड आयन, KCN जनरेट करेगा C कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, एंड कार्बन इज नेगेटिव चार्ज. सो हियर इफ कार्बन साइनाइड आयन, यहाँ से जो सब्स्टिट्यूशन बनेगा वो बनेगा RCN, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्राइल एंड ऑल्सो साइनाइन. C AgCN, what is the generated, AgCN जनरेट AgCN से AgCN ही हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा, और यहाँ पे इसमें देखो ये R और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे R और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, सो इट इज कॉल्ड एज आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनाइड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सी दिस KNO2. सो हियर NO2, ये जो NO2 दिख रहा है इसको हम इस तरह से लिखेंगे. सो ये NO2 जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल है. ओके, एंड this is our final product, and this is also called alkyl nitride. This is our final product. If you take AgNO2, then AgNO2, it is our nucleophile, and our product is RNO2, and it is also called nitroalkane. If you take RC double bond OAg, this is our reagent, and ये reagent जो है ये RC double O minus न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा. सो RC double O R, RC double bond O R, दिस इज एस्टर, इसको हम बोलते हैं एस्टर. ओके, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे R और R डैश, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, एंड ऑल्सो इट मे बी डिफरेंट ऑल्सो. सी अनदर रिएजेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड.
और यहाँ से जनरेट होगा हाइड्राइड आयन है, हाइड्राइड आयन H माइनस, एंड आवर हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, किससे सब्स्टिट्यूट होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, इट विल बी RH। RH मीन्स हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन। सी दिस अनदर important category, Rm, this is our metal and it has partial positive charge, and R, so our nucleophile will be this carbon ion, this is our carbon ion, and carbon ion will be replaced with alkyl halide and substitution product is RR dash, and RR dash is alkane. So these all are the important category of reagent and nucleophile generated by with it, and what is the product form, you have to remember all of this। आपको ये सभी पूरी टेबल इम्पोर्टेंटली याद रखनी है, एंड यू कैन रिमेंबर इट। ओके, आपको इसको याद, मतलब यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, इम्पोर्टेंटली what is the reagent and what type of reagent, what type of nucleophile is generated by this reagent and what type of product is formed, so this table is you have to remember, मतलब आपको इसको याद करना है। ओके, and the important thing you have to identify this R group alkyl halide, मैं इसको ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, आपको इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप नहीं पहचान पाए तो फिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ नहीं पाओगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस अनदर थिंग, एम्बीडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज एम्बीडेंडेंट nucleophile? So see this group like cyanides and nitrite possesses two nucleophilic centers. Cyanide already discussed, CN, and nitriles possesses two nucleophilic center called ambidendant nucleophiles. So two nucleophilic center, what is the meaning of this two nucleophilic center? Means they can donate electron with two different atoms, means they can donate इलेक्ट्रॉन्स विथ टू डिफरेंट एटम, ये दो अलग अलग एटम इसके डोनेट कर सकते हो। सी दिस एग्जाम्पल साइनाइड आयन, हियर इट इज अवर साइनाइड आयन। सी टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइनाइड आयन। सी एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड कार्बन इज नेगेटिव चार्ज, एंड अनदर दिस कार्बन nitrogen double bond, carbon has 2 electron and nitrogen has negative charge, so can act as a nucleophile in two different way। ये यहाँ से दो अलग अलग तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। कैसे? सपोज इफ साइनाइड इज लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम रिजल्टिंग इन एल्काइल साइनाइड, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो हम इसको साइनाइड बोलेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो वी कैन से इट इज साइनाइड। थ्रू नाइट्रोजन एटम, अगर जैसे ये कार्बन जो है, ये कार्बन, अगर ये कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो हम इसको बोलेंगे साइनाइड। ये नाइट्रोजन एटम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इफ थ्रू नाइट्रोजन एटम, अगर ये नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सपोज सी दिस CH3 CH2 NC, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बढ़ता है तो हम इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। सो दिस सी अनदर एग्जांपल, नाइट्राइट आयन विथ टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ लिंकेज, यहाँ पर भी टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ लिंकेज है। सपोज व्हाट लिंकेज, सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2, ओके, थ्रू लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन एटम, अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बनता है, आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो हम इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट्स। इफ लिंकेज थ्रू नाइट्रोजन एटम लीड्स टू नाइट्रो एल्केन, इफ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रो एल्केन। सो दिस इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ एम्बिडेंडेंट लिगेंड। लेट्स मूव दिस। So groups like cyanide and nitriles possesses two nucleophilic center called ambidentant nucleophile, मतलब जिसमें टू डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, दो अलग अलग एटम कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लिंकिंग थ्रू विद डिफरेंटली। सो दिस इज वन मोर एग्जांपल, हियर इज cyanide ion and one more example is nitrite ion। okay, so please remember it, revise it now।
So what we have learned today and we are going to end of the session. हमने आज क्या क्या सीखा? फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, how many product are possible with nucleophilic substitution reaction, how many types of nucleophiles, reagent and product is formed. ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद करना है. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो जो भी आप आज को पढ़ाया गया उसको नोट्स बनाते जाएं. ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में. इनको नोट्स में कॉपी बनाएं. और ये जो मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए हैं आप इनकी रिएक्शन खुद से लिखें अब आगे. ओके, एंड नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ SN reaction, nucleophilic substitution reaction and types of nucleophilic substitution reaction. Okay, so now end of the session. Bye.